Dear students, today's topic is thermal expansion. Thermal expansion and its types. Thermal expansion and its types. This is today's topic. Thermal expansion and its types. Almostly all the solids, liquids or gases, almost all the liquids, solids and gases expand when we heat them. ऑलमोस्टली जितने भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस है वो एक्सपैंड हो जाते हैं जब हम उनको हीट देंगे या टेम्परेचर बढ़ा देंगे. जो सॉलिड्स होते हैं उनके एरिया में इंक्रीज होता है, साइज में इंक्रीज होता है या वॉल्यूम में इंक्रीज होता है. बट इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस देयर इज ओनली इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम. ये जो एक्सपेंशन हुआ ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. द इंक्रीज इन द साइज or area or volume in case of solids due to the increase in temperature or due to heat is called thermal expansion. The increase in the size of a solid body due to the increase in temperature is called thermal expansion. ठीक है बेटा. थर्मल एक्सपेंशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं. Thermal expansion is of 3 types. First one is, याद रखना, एक है linear expansion. Second one is area expansion or superficial expansion. Superficial expansion. And third one is cubical or volume expansion. Cubical or volume expansion. इसको सुपरफिशियल को एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं, क्यूबिकल को वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बोलते हैं. एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता हूं बेटा. लीनियर एक्सपेंशन, if there is increase in length of the body, if there is increase in length of a solid body due to the temperature, due to increase in temperature, then such expansion is called linear expansion. अगर length increase हो गई due to the increase in temperature तो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन अगर एक हम रॉड लेंगे जिसकी ओरिजिनल लेंथ है L, जब हम इसको बेटा हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसकी लेंथ बढ़ गई. मान लीजिए इसकी लेंथ बन गई L प्लस डेल्टा L. ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L. इंक्रीज इन लेंथ हो गई, इंक्रीज इन लेंथ हो गई बेटा, इंक्रीज इन लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L माइनस L विच इज इक्वल टू डेल्टा L. डेल्टा L इज द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर. बट इट इज ऑब्जर्व दैट यहां पर अगर टेम्परेचर पहले T था, फिर टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T है. पहले टेम्परेचर T था, मान लीजिए पहले टेम्परेचर 10 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 40 डिग्री. इंक्रीज इन टेम्परेचर 40 माइनस 30, दैट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T माइनस T विच इज इक्वल टू डेल्टा T.
What is the increase in temperature? Delta T. What is the increase in length? Delta L. ठीक है बेटा. This increase in length depends upon two factors. This increase in length depends upon two factors. First factor is it depends upon the original length. पहले कितनी original length थी. और second factor is it depends upon the increase in temperature. Temperature कितना बढ़ गया. This implies that this increase in length is directly proportional to the original length. This is equation number first. And this increase in length is directly proportional to the temperature. Increase in temperature. So this is equation number second. ठीक है बेटा. If we combine these two equations, delta L is directly proportional to L into delta T. Delta L is equal to directly proportional को equality में लाया तो अल्फा आता है. Alpha L delta T, where alpha is constant of proportionality and is called coefficient of linear expansion. इसको बेटा बोलते हैं coefficient of linear expansion. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Coefficient of linear expansion, जिसको हमें डिफाइन करना है. Alpha will become delta L upon, शाबाश बेटा, L into delta T. What is delta L? मैंने बताया हुआ है. Delta L is the increase in length. Increase in length upon what is L? L is the original length. It is the original length. What is delta T? It is the increase in temperature. Increase in temperature. ठीक है बेटा. अब तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को तो डिफाइन कर सकते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर. शाबाश बेटा. व्हाट इज डिफाइन कर दीजिए. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन कर दीजिए. Coefficient of linear expansion is defined as the ratio of increase in length to the original length per degree increase in temperature. फिर से, coefficient of linear expansion is defined as the ratio of increase in length to the original length per degree increase in temperature. ये जो अल्फा है बेटा, आपको पता है इंक्रीज इन लेंथ इन अगेन लेंथ है वो, तो इसका यूनिट आएगा मीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हो गई फिर से मीटर. इंक्रीज इन टेम्परेचर मींस टेम्परेचर का हो गया केल्विन. मीटर कैंसल, अल्फा का यूनिट बन गया केल्विन इनवर्स. अगर केल्विन इनवर्स नहीं रखना चाहते हो तो सेंटीग्रेड इनवर्स भी रख सकते हैं. These are the units of coefficient of linear expansion. याद रखा बेटा. तो इसको बोलते हैं linear expansion. मैं आपको फिर से बताता हूं. When there is increase in length of a solid body due to the increase in temperature, then it is called linear expansion. Linear expansion के वक्त length बढ़ जाती है. ठीक है. तो आप सबको पता है. Let us consider a metallic rod of length L when the temperature was T. When we heat this, when we increase the temperature now is T plus delta T. Let the length of the rod increases and reaches to L plus delta L. Therefore, increase in length is delta L, increase in temperature is delta T. This increase in length depends upon two factors. First one is it depends upon the original length, and it depends upon the increase in temperature.
This means delta L, increase in length is directly proportional to the original length. Increase in length is directly proportional to the increase in temperature. If we combine these two equations, we get delta L is directly proportional to L into delta T. Directly proportional को इक्वलिटी में लाया तो अल्फा आया. Alpha is constant of proportionality and is called coefficient of linear expansion. Now you have to define this coefficient of linear expansion. Alpha is equal to delta L upon L delta T. What is delta L? It is the increase in length. L is original length. Multiply delta T, increase in temperature. Hence, coefficient of linear expansion is defined as the ratio of increase in length to the original length per degree increase in temperature. The unit of alpha is Kelvin inverse or centigrade inverse. ठीक है. Now the second is superficial expansion or area expansion. Area expansion. याद रखना बेटा, सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन. देख लीजिए, जिसको एक टर्म आएगी उसको तीनों टाइप्स आएंगे इसके. आप लोग देख लीजिए. मान लीजिए हमने एक प्लेट लिया. ये स्क्वायर प्लेट है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी रखी हमने? L. यहां से भी L है. ठीक है. अब देख लीजिए, हमने इसको हीट किया तो ये इतना बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया चारों तरफ से. इसका मतलब हो गया इसकी लेंथ या कितनी बढ़ गई? डेल्टा L. यहां से भी बढ़ गई डेल्टा L, यहां से भी बढ़ गई. ठीक है. तो जो एरिया है इसका, अब आप सबको पता है, अगर इसका एरिया इस फिगर का एरिया था A, पूरे फिगर का ये डॉटेड पोर्शन का एरिया बन गया A प्लस डेल्टा A. इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ? जब इस फिगर का एरिया था, मान लीजिए PQRS जो फिगर थी, इसका एरिया था A. P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश का एरिया बन गया. इधर देख लीजिए, PQRS का एरिया था A, टेम्परेचर था T. P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, जब इस फिगर को हमने हीट किया तो इसका एरिया बन गया A प्लस डेल्टा A, मगर टेम्परेचर था T प्लस डेल्टा T. शाबाश. इफ देयर इज इंक्रीज इन एरिया of a solid body, when we increase the temperature, then it is called superficial or area expansion. Superficial और area expansion बोलते हैं इसको. टेम्परेचर के बढ़ने से जब एरिया बढ़ जाएगा, तो मुझे बता दीजिए बेटा, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ? हो गया A प्लस डेल्टा A माइनस A. ठीक है. तो कितना बन गया? डेल्टा A बन गया इंक्रीज इन एरिया. इंक्रीज इन एरिया डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स. ओरिजिनल एरिया, सेकंड वन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया. Increase in area is directly proportional to the increase in temperature. Increase in area is directly proportional to the original area multiply increase in temperature. Increase in area is equal to, अब देखो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब मैं इक्वलिटी में लाता हूं एरिया एक्सपेंशन में, देयर इज बीटा. बीटा इज कॉल्ड beta is constant of proportionality and is called coefficient of
सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। और यहां पर बीटा जब लिखूंगा मैं, बीटा यहां पर आएगा डेल्टा ए अपॉन ए। इसका मतलब हो गया इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए बीटा को डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर मैं एरिया का यूनिट दूंगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया का यूनिट दूंगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, फिर से कैंसिल होंगे, फिर से यही आएगी, इसलिए बीटा का यूनिट भी यही है, बीटा का यूनिट भी यही है, केल्विन इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स। इसी तरीके से बेटा अगर आप वॉल्यूम एक्सपेंशन करोगे, या जिसको क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं, सिर्फ आप लोगों को डायग्राम अलग बनानी पड़ेगी, क्यूब बनाना पड़ेगा, इस तरीके से क्यूबिकल एक्सपेंशन ऐसे बनाना है आपको। इसका वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम तो V रखना है, फिर इंक्रीज करना है आप लोगों को, ऐसे इंक्रीज करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हुए दिखाना है। तो फिर जहां जहां पर A है वहां पर V आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ यहां पर बनेगा डेल्टा V इज इक्वल टू, यहां पर बनेगा गामा V डेल्टा T, गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। किसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा को बोलते हैं। गामा होगा डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T। तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम per degree increase in temperature. Hence, coefficient of cubical expansion is defined as the ratio of increase in volume to the original volume per degree increase in temperature. इसका मतलब हो गया in volume expansion, when there is increase in volume of a solid body due to the increase in temperature, then it is called volume expansion or cubical expansion. क्यूबिकल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं गामा को, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर इसका यूनिट बनाएंगे तो यहां पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब कैंसल, फिर से गामा का यूनिट बनेगा, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, या चाहे गामा हो, यूनिट विल रिमेन द सेम। इसका मतलब हो गया थर्मल एक्सपेंशन, और इसके 3 टाइप्स जो है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में आता है। थैंक यू।